So this is, in this webinar, I'll discuss this HPT test. I don't know whether you have this with you or not, but I have already uploaded this test, so maybe you can download. And as I mentioned in the last session I took, that the purpose of the this session where I'll be discussing HPT um, is basically not the questions, because except like 5-6 question, all the questions are based on fundamentals. But idea is that like you have to do these papers, you have to attempt these papers yourself. So maybe just to bring your focus, that you have to you must be busy preparing for your board exam, but at the same time you have to, because as you know, the contribution of board is not going to be counted towards your admission to NITs. And NITs are they're the good colleges, because nowadays that the branch is more important than the college. So if you want to, we have most of the job opportunities are in computers and electronics. So that way you have to take this exam also very seriously. So I understand. Board personally, it's my personal opinion that whether you get 97% or 92% or 89% is not going to make much difference. And unless you have other plans, you want to go study abroad and all, for admission to engineering colleges in India, it's not going to make any difference now. So, so this is so again the pattern is same. There are 30 questions and uh, less time, more number of questions. So, so this is a question based on easy question, I would say, but there might be chances that you can get confused. So let's see this. There's a quadratic equation given where we have A involved, and we have these statements, and we have to on these, based on these statements, we have choices, and then we have to choose which one is correct. The first option is the P statement. Is we are defining statement on this: all values of A for which the product of roots of given quadratic equation is positive. The product is positive. So product of the roots, is a minus 4 over a minus 5. We are saying it is positive. We are not talking about the real roots. हम कह रहे हैं कि roots हो सकता है कि non imaginary हो, sorry, imaginary roots हो, complex conjugate हो, because coefficient real है. So it might be root can also be like alpha plus minus iota beta है. तो वो में कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है कि रूट्स रियल भी होने चाहिए. तो अगर हाँ ये है पक्का कि अगर ये रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पॉजिटिव ही होगा, राइट? अल्फा प्लस बीटा आयोटा मल्टीप्लाई विद अल्फा माइनस बीटा आयोटा, तो वो तो ऑलरेडी टेकन इनटू कंसिडरेशन. वी जस्ट हैव टू अप्लाई दिस कंडीशन. ए माइनस 4 ओवर ए माइनस 5, जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई है, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन 0. एंड इफ यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी सॉल्यूशन, इट इज आउटसाइड 4 एंड 5. पॉजिटिव होना चाहिए तो जीरो भी नहीं हो सकता, राइट? सो एक सो रूट जीरो भी नहीं हो सकते, बोथ द रूट शुड बी नॉन जीरो ऑल्सो, ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो गया. So this is outside 4 and 5, excluding 4 and 5. And our Q statement is all values of A for which the product of the roots of given quadratic is negative. A product of the roots negative तब होगा भाई when one root is positive, one root is other root is negative. So alpha beta less than 0, we know this condition, right? Product of the negative is alpha beta less than 0 कर दिया आपने. So this time A minus 4 over A minus 5 less than 0 है, तो आगे A belongs to 4 to 5, between 4 and 5, right? So it is between 4 and 5, 4 to 5. So, and then all values of A for which the product of the real roots of the given quadratic is positive. Or real root should be real and then the product is positive. Root should be real. Real में condition एक लगानी पड़ेगी. D should be greater than equal to 0. Right? Real roots होने चाहिए. So D greater than equal to 0 means 4A square minus 4 times A minus 4 into A minus 5 greater than equals to 0. So we can divide by 4. So A square minus 9A plus 20 greater than equals to 0. We cancel a square with a square, and then we have 9a minus 20 greater than equals to 0. A is greater than equals to 20 by 9, which is 2 point something. So like then we have to take the intersection with this. So choices देख लेते हैं पहले क्या, and we don't need to do S and T because none of the choices is based on S and T. Only P, Q और R ही आ रहा है choices में, तो ये statement देखने की जरूरत ही नहीं है हमें. Just a minute.
So now P intersection Q is empty set. Yes, of course, because we are saying one condition root is positive, other is negative. So yes, there's no, and we can see the answer also. There is no common element between P and Q set. And then R is subset of P, right? वो होगा ही है क्योंकि आर में दो कंडीशन डाल दी है, तो ये निकाल इतना डिटेल में करने की जरूरत भी नहीं थी हमें, बिकॉज आर इज सबसेट ऑफ पी तो होगा, बिकॉज आर में आर की वैल्यूज कम है, आर में रूट्स पॉजिटिव तो है लेकिन रियल भी हैं, तो आर को हमने और श्रिंक कर दिया आर को. पी आर इज ऑलवेज सबसेट ऑफ पी बिकॉज आर हैज द राइट, यू नो लाइक यू कैन सी हियर, यहाँ से ये कंडीशन में डालेंगे आउटसाइड 4 and 5 पे तो वैल्यूज कम ही हो जाएंगे, तो आर सबसेट हो जाएगा पी का. दैट्स करेक्ट. एंड देन वी हैव P यूनियन Q जब करेंगे, P और Q को मिलाएंगे तो complete set बन रहा है except 4 and 5. This is also correct because P says that values outside 4 and 5, Q says that between 4 and 5, and you know they cover the whole thing except 4 and 5. So you know this was the kind of a straightforward question. So we can see here 3 sigma signs, but it's not at all difficult even though we have 3 sigmas, because you know if you see what is inside the sigma, it is a to the power I into a to the power j into a to the power k. Yeah, and there are you know the first sigma is based on k varies from 1 to infinity, second is based on j 1 to infinity, third is based on I 1 to infinity. तो आपने सिर्फ k पे बेस्ड है तो इसको यहाँ रख के कॉमन ये बाहर लेके जा सकते हैं सिग्मा से, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ k. एंड देन सेम वे जब j के पास आएंगे तो हम I को बाहर लेके जा सकते हैं, सो आई कैन राइट दिस, डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ मैं सिग्मा को, a to the power I समीशन 1 by a to the power j समीशन 1 by a to the power k. अब ये भी इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, ये भी इनफाइनाइट जीपी है, तीनों का सम लगाना है. So first questions are fairly easy. So this question, you know, this is sorry pi into this is pi. So it's the kind of thing which is when you come back home and then solve the question, you realize it was such an easy thing. But when you sit in the exam, sometimes you are not able to realize it. This is you know this is just the integral multiple of 2 pi a, and we can remove this from the cos. It has nothing to do. So we can simplify this fx function as cos of pi into mod of x. और mod of x भी cos x you know is an even function already, तो mod से भी फर्क नहीं पड़ता cos को. even function x की जगह mod x करेंगे तो mod x से क्या फर्क पड़ता है, you reject left half, take reflection of right half into left half. बट जो cos का ग्राफ cos x का है, cos pi x का जो ग्राफ है वो तो ऑलरेडी रिफ्लेक्शन राइट है अबाउट द y axis. so mod x भी हटा सकते हैं, it's just cos pi x है, and cos pi x you know is neither odd nor even wrong because cos x is even function. fx is non-periodic fx is a non-periodic function, this is wrong. Range of fx ये correct है, range of fx is between -1 and 1, this is also wrong. तो mod लेंगे तो lower half upper half में flip हो जाएगा, पूरा function change हो जाएगा. When we take mod means you know that we flip lower half into upper half, but then it's totally changed now. How can the two be equal, right? So maybe let me go forward and then I can go back to the questions that you missed out. Yeah. So this is again this is an interesting question because the way it is the question again based on fundamentals, but the way it is laid out, if you're panicking exam, either you end up taking more time or you know you end up taking more time. You can definitely do this question, but you end up taking more time. So you know, so how we, this is a based on composite function. देखो आप अगर f1 based f1x based है f2x पे, और f2s f3x पे based है, f3x f4x पे based है, और f4x की वन है हमें, तो उल्टा चलेंगे इस बार हम. जैसे मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर यहाँ से आप देखो ये लास्ट ब्लॉक क्या है मेरा, ये 2 to the power x है बेसिकली, और इसको f2 फंक्शन जा रहा है अंदर, तभी तो 2 to the power f2 होगा ये, राइट. यहाँ से अगर f2 आ रहा है तो f2 को f1 जा रहा है, f2 को फीड कर रहे हैं f3 फंक्शन सॉरी, और वो क्या 2 to the power 12x, ये इसको यहाँ से हम f3 फंक्शन दे रहे हैं, वो x की जगह 2 तभी तो 2 to the power 12x 2 to the power 12 to the power f3 हो जाएगा, राइट. और जो f3, अब देखो f3 यहाँ से निकल के आ रहा है, वो उसको फीड क्या मिल रहा है, f4 मिल रहा है फंक्शन, और ये है 1 by 2 to the power 2013 to the power x, ये ऐसा फंक्शन है.
उसको वैसे माइनस एक्स लिख लो, राइट। सो और f4 फंक्शन हमारा ये है, उसको x फीड हो रहा है, वो प्योर फंक्शन है log ऑफ 2013 log ऑन x 2012, ये है। और यहाँ से हम कहानी शुरू करेंगे, यहाँ तक आते हैं। जब ये फंक्शन इसको मिला तो ये आप देखो क्या 2013 टू द पावर माइनस एक्स आई, इसमें जो माइनस एक्स इसमें ये नेगेटिव ये रिप्लेस कर दिया, माइनस यहाँ से जो आ रहा है फंक्शन log ऑफ 2013 और ये log 2012 बेस एक्स, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ऐसे, माइनस गया। और ये प्रॉपर्टी यूज कर ली हमने, टू टू द पावर लॉग टू टू द पावर 13 टू द पावर लॉग टू द पावर लॉग टू द पावर 13। तो जो ये फंक्शन आ रहा है वो आ रहा है 1 बाय log 2012 और बेस एक्स। इसको भी रेसिप्रोकल कर दिया तो क्या हो गया, ये log ऑफ एक्स बेस्ड ऑन 2112 हो गया, ये 2012 हो गया, ये हो गया। ये इस फंक्शन को मिल रहा है, जब ये फंक्शन को मिलेगा तो एक्स रिटर्न करेगा ये। तो बेसिकली टू द पावर एक्स के पास एक्स जा रहा है, जो आउटपुट आएगा अगर आप देखोगे जल्दी में आपने कह दिया टू टू द पावर एक्स का को एक्स मिलेगा तो इसकी रेंज क्या है, आपने कहा अच्छा है, तो आपने 0 टू इन्फिनिटी कर दिया, ये गलत हो जाएगा, राइट। 0 टू इन्फिनिटी रॉन्ग है इसके अंदर आंसर, वो क्यों, मतलब जनरली ये निकालोगे आप, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे कंडीशन गिवन होनी चाहिए, जो नहीं गिवन है एक्स ग्रेटर देन 1 गिवन होना चाहिए था, जो कि यहाँ से देखो इसमें आप कहीं भी लगाओगे, यहाँ से लगा लोगे आप, ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा, वो क्वेश्चन में गिवन ही होना चाहिए एक्चुअली, वो 2012 अगर एक्स है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए लॉग में, राइट। लॉग की क्वांटिटी ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है log ऑफ 2012 ऐसे लिख लो, या इसका रेसिप्रोकल समझ लो 1 बाय कैसे भी तो पार्ट कर लो, या तो उसके log ऑफ 2012 ऑन बेस सी डिवाइड बाय log ऑफ x ऑन बेस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव होने के लिए x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर आएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक आएगा, इस बार 0 से इन्फिनिटी नहीं आएगा, 2 से इन्फिनिटी आएगा, राइट। सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उल्टा चल के ऐसे पूरा कंपोजिशन बनानी है। So this is very easy question, just to score marks. The least positive value of x satisfying this. So it's basically 2 to the power x equals to n pi हो गया, right? तो x is log of n pi है। तो least positive value of x क्या होगा, n x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यहाँ ध्यान रखना है हमें, x तो e to the power x के अंदर सॉरी इंटीग्रल में e to the power x नेगेटिव नहीं हो सकता, व्हाट आई मीन टू से e to the power x इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो ये n पाई भी पॉजिटिव होना चाहिए, n पाई पॉजिटिव होने के लिए n शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। नेचुरल नंबर है लेकिन 1 2 3 4 नेचुरल नंबर डाल सकते हो। तो x की जो मिनिमम वैल्यू हो तो log पाई हो गई, x इक्वल टू log पाई, तो यहाँ पे राइट, तो अल्फा है बेसिकली, अगर यहाँ पे log पाई डालेंगे अल्फा को तो दिख रहा है कि ये log पाई डाल के तो बेसिकली 4 है, ये 4 log पाई है, राइट। तो ये भी log पाई अल्फा भी, तो ये 4 आंसर है, और ये यहाँ से ये लिखा 4 है बेसिकली, सब कुछ 4 ही बन रहा है ना ये। और 4 इज अ रैशनल नंबर, ये करेक्ट हो गया। 4 इज एन ऑड इंटीजर, नो। 4 इज अ नेगेटिव इंटीजर, नो। 4 इज अ प्राइम नंबर, नो। तो ये चॉइस आ गई, कर लेना एकदम। इफ वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अलोंग द लाइन y इक्वल्स टू x बाई 2, एक डायगोनल ऐसे है, वो ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, और एक वर्टेक्स 3,0 ऐसे बना लो, बेटर है, कर लो। एक डायगोनल की इक्वेशन गिवन है हमें और एक वर्टेक्स गिवन है 3,0, टिपिकल क्वेश्चन है, मॉडल में भी है ऐसा। तो ऑब्वियस है कि ये पॉइंट इस पे लाई नहीं कर रहा है, राइट। तो ये वाला वर्टेक्स इस साइड पे होगा, ये दोनों वर्टेक्स नहीं हो सकते, इन दोनों में से एक वर्टेक्स होगा ये। अब निकालना साइड पासिंग थ्रू दिस टू दिस वर्टेक्स, ये इन दोनों की इक्वेशन निकालनी है। वेरी टिपिकल क्वेश्चन है, इसका स्लोप पता है हमें हाफ है, राइट। तो इसका स्लोप -2 हो गया, तो -2 से 45 डिग्री के एंगल पर जो दो लाइन होंगी उनके स्लोप को फॉर्मूला लगा दिया, -2 प्लस -10 45 डिग्री ओवर 1 माइनस प्लस -2 इंटू 10 45 डिग्री। दो स्लोप यहाँ से आ जाएंगे, पॉइंट तुम्हें पता ही है, तो दो इक्वेशन मिल जाएंगे। सो अगेन आई रिपीट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, you know, if you're taking more than 30 seconds to solve it, then and normally if you don't practice you will take more than 30 seconds, but 30 सेकंड में हो जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। दैट 30 seconds so फिनिशिंग करते करते आंसर मार्क करते करते 45 सेकंड मान लो आप, but you cannot take more than that. So again very fundamental question, locus of a midpoint of a chords of this circle with substance right angle at this। तो इसमें बिल्कुल ज्योमेट्री लगा के करना होता है क्वेश्चन कि मिड
हर क्वेश्चन में नहीं लगती, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ऐसे में लग जाती है। मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। टी इक्वल टू S1 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तरीका ये है कि क्वेश्चन लिख लो टी इक्वल टू S1 ऐसे, वो मत करना, टाइम लगेगा। क्या हमें सेंटर पता है सर्कल का, a/2, b/2 है। अब यहाँ पे एंगल 90 सब्सटेंड हो रहा है, कॉर्ड सब्सटेंड कर रही है, तो ये एंगल 45 हो गया सिमेट्री से। ये एंगल 45 है, ये रेडियस पता ही है हमें सर्कल का क्या है, राइट। रेडियस की रेडियस पता ही है हमें सर्कल का, और ये लेंथ पता ही है हमें पाइथागोरस से डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो अगर मैं ये d कहता हूँ, मैं r कहता हूँ, तो बेसिकली r बाय रूट 2 r cos 45 इक्वल्स टू d, ये रिलेशनशिप है। और ये रेडियस तो पता ही है हमें, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4 प्लस b स्क्वायर बाय 4 है रेडियस का स्क्वायर, इक्वल्स टू 2 टाइम्स दिस d। d इज x1 minus a/2 whole square plus y1 minus b/2 whole square। लोकस आ गया ऐसे। So this is a question based on permutation. So see, again, whether those who are getting a feeling that I'm running fast, that's the purposely I'm doing it. So because again, you have to do it yourself in time bound. So words are formed by letter of the word engineering. So the first thing we do is we need to see पहले पढ़ लेते हैं। चलो नंबर ऑफ, अब ये इसमें चारों चॉइसेस देखनी है कौन सी करेक्ट है कौन सी फॉल्स है। ऐसा क्वेश्चन में टाइम लगता ही है, बिकॉज effectively it's like 4 questions you have to do, राइट। क्योंकि सबको चेक करना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है फॉल्स है। सो यू नो, सो यू हैव टू लाइक डू 4 टाइम्स। अब नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग ऑल द वॉवल्स, 5 लेटर में बहुत सारे वॉवल होने चाहिए, कंटेनिंग ऑल वॉवल्स इज 120। तो पहले देखते हैं इसमें, ये तो E 3 टाइम्स आ रहा है, N 2 टाइम्स आ रहा है, एंड देन वी हैव G R 4 और 3 7, 8 I भी है इसमें। तो ये तो वॉवल्स हो गए 4, ये 4 कॉन्सोनेंट्स हैं। अब वॉवल्स तो लेने ही है हमने, नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स कंटेनिंग ऑल वॉवल्स है, तो वॉवल तो आई गया चारों, एक और लेना है इसमें से कोई। अब कौन सा इसमें से ले सकते हैं, तो वो अब एक ही लेना है, तो वो या तो N आएगा या G आएगा, R आएगा, तो 3C1 में से वो सेलेक्ट कर लिया। और जब एक कॉन्सोनेंट आ गया, ये 4 वॉवल्स हैं, उनको अरेंज करना है, तो क्या हो गया 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि तीन आइडेंटिकल है ये, तो ये बनता है 3 इंटू 5 इंटू 4, सो 60 आ गया आंसर। तो ये गलत हो गया नंबर, अच्छा सेम, ये दोनों सेम चॉइस हैं, तो ये तो करेक्ट हो गया सेकंड, 60 आंसर निकाला हमने। नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द लेटर्स इन विच एग्जैक्टली 2 ईज आर टुगेदर, ये पहले मैंने डिस्कस किया था, इस तरह क्वेश्चन एग्जैक्टली 2 ईज टुगेदर होने चाहिए। तो दो तरह से कर सकते हैं, टोटल निकाल के माइनस कर दिया आपने, ऑल ई सेपरेटेड, माइनस कर दिया ऑल ई टुगेदर। को मुश्किल नहीं है, ऑल ई सेपरेटेड तो पता ही हमें कैसे आएगा, 3 ही अलग करके, बाकी जो 5 बच गए हैं उनके बीच में 6 पोजीशन होंगी, 6 से 3, फिर उनको हमने ईज को आपस में ऑर्डर किया हो तो 1 वे बिकॉज आइडेंटिकल है, बाकी रह गया, बाकी इन पांचों को 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल बिकॉज 2 एंस आर आइडेंटिकल। तो ये हमने पांचों को अरेंज कर लिया, ये हमने ई की पोजीशन चूज करके प्लेस कर दिया, ऑल सेपरेटेड हो गया, इनके बीच में प्लेस करना होता है इसलिए। ऑल टू ई टुगेदर में ई का ग्रुप बना के बाकी जो 5 है उनके साथ ऑर्डर कर दिया, 6 फैक्टोरियल group of e and then 5 more and divide by 2 factorial because 2 n's are identical। तो ये आंसर आ गया। तो ये इस तरह से माइनस करके, टोटल तो पता ही है हमें 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ 3 e's and because of 2 n's। तो एक तरीका ये कर सकते हैं। बाकी जो मैंने पहले ये भी कराया था, अगर 2 e साथ रख लिया तो टर्मिनल पोजीशन पे अलग करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे अब बाकी जो मेरा तीसरा ये होगा उसके लिए कितनी पोजीशन है रखने के लिए, एन एन आई जी आर, तो उसके बाद यहाँ नहीं आ सकता, वो यहाँ आ सकता है ऐसे, इसमें से 1 2 3 4 ऐसे, वो इस तरह से कर सकते हैं, चूज करके कितनी पोजीशन प्लेस कर सकते हैं उसको, कितने वेज हैं। ऐसे ई अगर राइट साइड पे आएगा तो कितने वेज हैं उसके लिए, वो सेम ही होंगे। और ऐसे ये अगर बीच में आना है, 2 ई को बीच में रख के, जैसे ई को यहाँ रखा है, इस बार वो टर्मिनल पे नहीं है, बाकी जगह में बाकी सारे आई जी आर ऐसे हैं और एक और एन है, तो अब इसके में ये पोजीशन चली जाती है, यहाँ नहीं आ सकता वो, राइट। मतलब कितनी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है ऐसे, और फिर यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ और यहाँ, तो ये पोजीशन कम हो जाती है, तो इस तरह से हमने चूज कर लिया, राइट। तो या इसका एक और मेथड ये बनता है, वो भी इंटरेस्टिंग मेथड है,
कि हमने 2 ई और ये ई हैं, वो इंटीग्रल इक्वेशन मेथड यूज़ करके होता है। तो हम मान लेते हैं बाकी जो हमने 5 लेटर है वो कहाँ रखना है, कुछ को यहाँ रखना है, कुछ को यहाँ, कुछ को यहाँ। सपोज यहाँ x0 रख दिए, यहाँ x1 रख दिए इनके बीच में, और यहाँ x2। तो अब कुछ मैं यहाँ रखूँगा लेटर्स, कुछ इनके बीच में रखूँगा और कुछ यहाँ। अब मैं जो इंटीग्रल इक्वेशन बना ली मैंने ऐसे, टोटल 5 लेटर्स हैं वो, इसमें कंडीशन जो आएंगी मेरी मर्जी, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई भी लेटर ना रखूँ, डबल ई कॉर्नर में चला गया, तो x0 की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, मिनिमम एक तो होना ही पड़ेगा इनके बीच में, अदरवाइज तीनों साथ हो जाएंगे, वो तीनों ये आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, और x2 भी हमें जरूरी नहीं है कि हमें इस वाले ई के बाद को लेटर रखने हैं, ये जो अलग वाला ई कोने में भी हो सकता है, तो x2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो कितने सॉल्यूशन इस इंटीग्रल इक्वेशन के बनाएंगे हम, वो लेना है, वो तुम्हें पता ही है कि कैसे करते हैं। सबके मिनिमम वैल्यू को 0 कर लेते हैं, x0 की जगह y0 रिप्लेस कर दिया, x1 की जगह कर दिया y1 प्लस 1, सो दैट कि इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 बन जाए, और ये y2 इक्वल्स टू 5, राइट। तो इस तरह से हम ओल्ड वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं न्यू वेरिएबल प्लस मिनिमम वैल्यू ऑफ ओल्ड वेरिएबल, सो दैट कि अब जो नया वेरिएबल, जो न्यू वेरिएबल आया मेरा, ये इसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 बन गई है। तो ये इक्वल टू 4 हो गया, वेयर नाउ आई कैन से वाई आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 1 2। ठीक है, अब इसके इंटीग्रल इक्वेशन तो हमें पता है, फॉर्मूला होता है हमारा, वी हैव टू डिवाइड 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू 3 ग्रुप्स सो दैट ईच गेट 0 और मोर। सो 4 + 3 - 1 c2 6 c2 15 क्या आ गया। अब ऑर्डरिंग भी करनी है हमने, जो बाकी 5 हैं 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, जो बाकी जो 5 हमने जो उनको प्लेस किया हमने, बाकी लेटर्स को उनकी ऑर्डरिंग भी तो करेंगे, उनकी ऑर्डरिंग इतनी बेस में कर दी, सॉरी 15 फैक्टोरियल 15। तो एक कैसे कोई तीनों मेथड में से कोई मेथड आप लगा सकते हैं, आपको मेथड ही पता हो, बस यू फॉर्म याद रखना है इसको। अगर 2 टुगेदर 1 सेपरेटेड तो कैसे करना है, 2 टुगेदर 1 सेपरेटेड तो कैसे करना है। दिस इज आल्सो फाइन, द फर्स्ट मेथड आई डिस्कस। So सो दिस इज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, अगर पहले नहीं किया आपने, आइडिया नहीं है तो एग्जाम में आप सोचते रह जाओगे इसको, लेकिन आई एम श्योर पहले किया होगा आपने, आई थिंक मॉडलिंग में भी। तो हम करते क्या है, जैसे ये हमारी टिपिकल क्वेश्चन है कि ये इसके रूट हैं। पहली बात तो ये ओमेगा है, डब्ल्यू ओमेगा मत मानना है इसको, ओमेगा से कोई मतलब नहीं है इसका, ओमेगा सिंबल बना हुआ इसकी कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये टिपिकल है कि अगर इक्वेशन के रूट्स पता है तो उससे हम आइडेंटिटी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो हमारा ये है। सो वी कैन राइट दिस एज 6 टाइम्स z minus w1, z minus w2, z minus w3 goes on up to z minus w5। ये मेरी इक्वेशन बन गई, मतलब इसी को हमने फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया। अगर रूट्स पता थे तो रूट्स को हमने फैक्टराइज फॉर्म में, सेम अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं क्वाड्रेटिक के, तो आई कैन राइट दिस आइडेंटिटी, आई कैन मेक दिस आइडेंटिटी x minus alpha into x minus आइडेंटिटी मींस आई कैन रिप्लेस एनी वैल्यू ऑफ x इन दिस, क्योंकि दोनों इसको इसी को फैक्टराइज फॉर्म में लिख लिया और इक्वेट कर दिया, दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगी, तो दोनों साइड हमेशा इक्वल है तो आइडेंटिटी बन गई, सेम आइडेंटिटी बना लिया हमने। अब हमें हमें इनका हमें देखो समीशन चाहिए, रेसिप्रोकल भी आना चाहिए, सम भी आना चाहिए। तो तरीका होता है लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग लेने से अलग हो जाएंगे सारी मल्टीप्लिकेशन टर्म्स, और डिफरेंशिएट करने से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे। टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स एंड डिफरेंशिएट टू गेट द आंसर, टेक लॉग एंड देन यू डिफरेंशिएट। 6 को डिवाइड कर दो, 6 की तो जरूरत भी नहीं है, मैं 6 यहाँ भेज दो बस, नाउ यू टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट, यू गेट द आंसर। तो उससे ये साइड ओरली बाइंग स्पेशन देख लो आ जाएगा, मतलब बाएं ओरली देख लिया आपने, लॉग लिया सब अलग हो गया, लेकिन जब डेरिवेटिव लेंगे तो लॉग भी चला जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z after taking log। So this is again kind of a question which look tedious when you look at this, but है नहीं ऐसा। इसको आप देखो जबरदस्ती, इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, तो n+1 ck है, राइट, और ये -1 टू द पावर n को तो हम भारी कर देते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ k है, ये -1 टू द पावर k है, -1 टू द पावर -k विच इज सेम एज -1 टू द पावर k ही होता है, वो तो सेम है, उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ ऊपर ले जाओ माइनस साइन को फर्क नहीं पड़ता, उसको k ले सकते हैं। यहाँ पे k ओवर k+1 है, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले +1 -1 कर लिया हमने स्टार्टिंग में, और दो पार्ट के अबाउट स्प्लिट कर दिया इसको, तो एक बन गया
-1 टू द पावर n बार है ये समीशन -1 टू द पावर k, ये k प्लस में कैंसिल होके n+1 ck ये बन जाएगा। फिर बनेगा -1 टू द पावर k, सॉरी -1 टू द पावर n समीशन ऑफ, जो भी k वेरीज फ्रॉम 0 टू n, -1 टू द पावर k n+1 ck डिवाइड बाय k प्लस 1। ये तो इसको जो आप देख रहे हो, इसको आप ऐसा क्वेश्चन भी तो किया आपने, सस्पेंड करके देखो, आपने किया अभी माइनस को छोड़ो, पहले बाइनोमियल कोएफिशिएंट देखो, n+1 c0 ओवर 1, n+1 c1 ओवर 2, देखो इंटीग्रल करना होता है, इंटीग्रल से देखो, इंटीग्रल से आता है n+1 c2 ओवर 3 गोज ऑन। दिस इज नथिंग बट, अगर हमारे ऑल्टरनेट प्लस माइनस भी है, k को 0 डालेंगे तो प्लस ये है, ये तो आप 1 माइनस एक्स टू द पावर n+1 को इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 टू 1, ये आ जाएगा ऐसे, राइट। 1 माइनस एक्स का इंटीग्रल है ये, देखो आप करके देख लो आप, जो 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन है, 1 माइनस एक्स टू द पावर n+1 का जो एक्सपेंशन है, n+1 c0 माइनस n+1 c1 x प्लस n+1 c2 x, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे अगर आप 0 टू 1 में, तो क्या आ रहा है, इंटीग्रेट करने से यहाँ पे आ जाएगा 2, इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे 1 आएगा, इसमें 3 आएगा, वही ये तो ये आ गया। और सेम वे इसको देखना है तो कुछ है ही नहीं, ये तो सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑर्डिनल प्लस माइनस साइन है, k 0 टू n है, बस ये ध्यान रखना है यहाँ n+1 है और लास्ट टर्म ये n है, तो लास्ट टर्म बिल्कुल बचेगी, जो n+1 की कंट्रीब्यूशन मिसिंग है इसमें, n+1 की कंट्रीब्यूशन ऐड भी करनी पड़ेगी और सेपरेट भी करनी पड़ेगी, वो आप टर्म एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एक कम है इसके अंदर समीशन में, तो ये सिंपली जनरली जीरो होता है ये अगर आप देखेंगे ये फॉर्मूला जीरो होता है, अगर आप फॉर्मूला हमारा समीशन ऑफ -1 टू द पावर r NCR, r वेरीज फ्रॉम 0 टू n इज 0 बिकॉज ऑफ ऑर्डिनल प्लस माइनस साइन, बट अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह n-1 कर दूंगा तो यह मतलब यहाँ पे n को n की जगह n+1 कर दिया और यहाँ पे n ही रहने दिया, तो एक टर्म मिसिंग है इस बार, 0 आंसर नहीं होगा, एक टर्म बचेगी लास्ट वाली, तो वो आपने एडजस्ट करना है। So this is again a question based on conic, an easy question I would say, that -1, -2, -8 is one end of a focal chord. Focal chord, the chord passing through focus है, उसकी कंडीशन ही याद रखते हैं, अगर फोकल कॉर्ड है तो t1 t2 इक्वल टू -1 होता है, सपोज ये एंड t1 है, इसका पैरामीटर t2 है, तो वी हैव दिस t1 t2 इक्वल टू -1, विल यूज दिस रिजल्ट। तो इस, लेकिन मैं टी की फॉर्म में नहीं पता, ये पॉइंट में 2, -8 पता है, मैं रफ बनाया, वैसे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, यहाँ होगा ही, लेकिन 2, -8 है, तो हमने बेटर है कि टी निकाल लेंगे पहले देखा हम ए क्या है, ए इक्वल टू 8 है इस केस में, वाई इक्वल टू 4x से कंपेयर करके, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करके ए 8 आ गया, तो 8 इंटू टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एंड 2 इंटू 8 इंटू टी इक्वल्स टू -8, तो यहाँ से टी यहाँ से निकाल लिया, टी यहाँ से -½ आता है, यहाँ से टी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आता है, लेकिन टी इक्वल टू ±½ आता है, लेकिन यहाँ से 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन ये बेटर है, टी इक्वल टू -½ एक ही आंसर है, टी -½ आ गया, तो ये जो वैल्यू ऑफ टी है वो 2, ये जो टी है, ये t2 इसको हमने टी लिया है, तो जो भी इसका पैरामीटर जो लिया है आपने वो 2 आ गया, ये -½ होगा, t1 t2 इक्वल टू -1 है, तो इसका पैरामीटर 2 आ गया, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 2t स्क्वायर, सॉरी पैरामीटर 2 है तो 8t स्क्वायर, a इज 8 इंटू 2 स्क्वायर 280, 2 इंटू 8 a, t क्या है 2 है, ये कोऑर्डिनेट्स आ गया 32 32 32 ऐसे आ गया। तो मैंने ये फोकल कॉर्ड डायरेक्ट रिजल्ट से मैं जल्दी हो गया क्वेश्चन में, इससे टी निकाल लिया, इस रिजल्ट से इसका टी आ गया, इसके टी से कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया, अदरवाइज या और कोई मेथड उससे कर लेना, तो मुझे इजी लगा था उसकी, नॉर्मल एट पॉइंट P ऑन दिस एलिप्स मीट्स x एक्सिस एट Q, नॉर्मल ड्रॉ किया पॉइंट P पे, एलिप्स पे, एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल्स टू 1 है, नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद दोबारा मीट कर x एक्सिस, ये x एक्सिस Q है, ये P पॉइंट है, M is a mid point of the line segment PQ, where locus of M intersects the latest rectum of the given ellipse, तो पहले M का लोकस निकाल लेते हैं, इसको x1 y1 लेके, तो आप देखो इसमें क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल का रिजल्ट यूज करेंगे, ax by cos थीटा
माइनस बी वाई बाय बेसिक अंडरस्टैंड बेसिक कोऑर्डिनेट कोनिक की नॉलेज चाहिए। क्वेश्चन ऑफ नॉर्मल लिया आपने, इसमें से ए मेरा 4 है, 4 और बाद में मैं मुझे इसका एक्स तो 4x बाय कॉस थीटा, बी 2 है 2y बाय साइन थीटा, और ये 16 माइनस 4 है ये, तो ये 12 हो गया राइट। तो अब इसमें मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई को 0 किया तो यह 4x बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 ये है, तो x इज 3 cos थीटा, तो इससे कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 cos थीटा कॉमा 0, और ये मुझे पता है a इज 4 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा, तो अपने वो निकाल लिया अपने 2x1 इक्वल्स टू सम ऑफ द 3 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा, एंड सेम वे 2y1 इक्वल्स टू 0 प्लस 2 sin थीटा, तो यहाँ से लोकस आ गया राइट, 2/7 x1 का होल स्क्वायर x cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा इज y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये लोकस है, लोकस पे इलिप्स आ रहा है। और अब लोग इंटरसेक्ट द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स, लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द गिवन एलिप्स इज x इक्वल्स टू a by e, ये क्वेश्चन है, x इक्वल टू a by e, सॉरी x इक्वल्स टू लेटेस्ट रेक्टम है सॉरी, तो वो x इक्वल टू a ये फोकस से पास करती है लाइन पर, ये दिस लेटेस्ट रेक्टम पासिंग थ्रू द फोकस ए कॉमा 0 या फिर x इक्वल्स टू माइनस ए, तो फिर उसको सॉल्व कर लेंगे इसके साथ। ई एसेंट्रिसिटी निकालनी पड़ेगी, ये तो पता है हमें 2 4 है, ई निकालना पड़ेगा, एंड यू नो इज रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस 16 बाई 4 सॉरी 4 by 16, b square by a square is 4 by 16, 1 by 4, 1 minus 3 by 4 root 3 by 2 by e, right, 4 into root 3 by 2, so 2 root 3 को हमें a से मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो 8 root 3 आ गई क्वेश्चन लाइन की x इक्वल टू 8 root 3, फिर सॉल्व करना, रिप्लेस करना है यहाँ से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। चॉइस में 8 root 3 आना चाहिए था, मिस्टेक की होगी मैंने फिर, 2 root 3 8 सॉरी रूट 3 by 2 आया था, उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तभी तो 2 रूट 3 आया, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई 2 बार कर दिया मैंने, 2 रूट 3 तभी तो सेम आना चाहिए 2 रूट 3, ये तो इन दोनों में से आंसर होगा, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे एलिप्स को वर्टिकल लाइन से तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा ना, इन दोनों में से कोई आंसर है। So if the latest rectum of the hyperbola subtends a right angle at the center, तो latest rectum of this hyperbola है x equals to AE, ये है latest rectum, subtends a right angle at the center, तो इसको तो ज्योमेट्री से कर लो ज़्यादा अच्छा है। देखो राइट एंगल सेंटर पे आएगा तो एंगल सिमेट्री है ना, क्योंकि इसकी ये एंगल 45 है, ये मुझे पता है लेंथ क्या होती है बी स्क्वायर बाई ए लेटेस्ट रेक्टम, और ये होती है पता है हमें ए ई, तो यहाँ से आ गया 1045 इक्वल्स टू दिस ओवर दिस, तो 1 इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए ओवर ए बाई ई, सो ई इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ रहा है, और सेंट्रिसिटी निकालनी है, उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला का फॉर्मूला, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये ई इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस वन, रिप्लेसिंग बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बाई ई स्क्वायर माइनस ई माइनस वन, सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया। तो देखो फंडामेंटल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इनको करने का फायदा नहीं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, टाइम सेव करना, ये तो इट्स नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये कई बार बात हुई है इस तरह से, कई लोग जो इनको कॉन्फिडेंस कॉम्प्लेक्स में नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस कॉम्प्लेक्स की करनी है, आई अंडरस्टैंड थोड़ा टाइम चाहिए, तो लेकिन क्वेश्चन फंडामेंटल इसमें तो फंडामेंटल क्वेश्चन आते हैं। इसको देखो, ये तो सर्कल की क्वेश्चन है, z माइनस आयोटा माइनस 1 mod equal to root 2, it's a equation of circle whose center is at 1,1, this is 1,1 and radius is root 2, तो सर्कल ऐसे होगा, माइनस वन सॉरी माइनस वन था, नहीं ये भी गलत बनाया, ये नहीं इधर नहीं है, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों नेगेटिव है, ये है सर्कल ऐसे है, ऑरिजिन से पास करेगा बिकॉज इस वन को माइनस वन का जो डिस्टेंस है वो रूट 2 है, यहाँ से रेडियस भी रूट 2 है, तो सर्कल भी पास थ्रू ऑरिजिन, ये सर्कल है, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये देखो सॉल्व हो जाएगा कि मॉड क्वाड्रेटिक है, मॉड z इक्वल्स टू 3 रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 16 2 डिवाइड बाई 2, तो आ रहा है प्लस साइन लेंगे तो 4 रूट 2 बाई 2 है,
तो मॉड जेड किसके इक्वल हो गया और नेगेटिव साइन लेंगे तो 2√2/2 है, तो एक √2 आ रहा है, मॉड जेड इक्वल टू √2 एंड दिस इज 2√2। तो ये दो सर्कल ही है बेसिकली, एक सर्कल ये एक सर्कल होगा मॉड जेड इक्वल टू √2, मॉड जेड इक्वल टू √2 सर्कल जो होगा वो ऑरिजिन सेंटर है उसका वैसे पास कर रहा है। देखो सर्कल ऐसे होगा, ऑरिजिन सेंटर है, सेंटर ऑरिजिन पे, और ये इस पॉइंट से पास करेगा बिकॉज उसका रेडियस √2 है ये, और ये जो सर्कल है 2√2 है तो वो इसको टच करेगा, तो इसका डायमीटर 2√2 है, तो जो सेकंड सर्कल होगा वो सॉरी सेकंड सर्कल ऐसे जाएगा, देखो टच करता हुआ इसको ऐसे, क्योंकि उसका रेडियस 2√2 है जो उसका डायमीटर है। तो पॉइंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, दोनों सर्कल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, नंबर ऑफ डिस्टेंट सॉल्यूशन निकालने इन दोनों के बीच में। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ये आ रहे हैं इससे, ब्लैक सर्कल के और जो रेड सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने। ब्लैक और रेड में दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएंगे, तीसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आएगा, और डिस्टेंस पूछा ही हुआ है तो उसको एक ही काउंट करेंगे, तो 3 आ गया आंसर। नहीं तो 3 सर्कल गिवन था, सर्कल को इसको सर्कल का क्वेश्चन था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दिया उसको। सो दिस इज अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ये x गिवन है, y गिवन है, z गिवन है, तीनों का तीनों इनफाइनाइट सीरीज हैं, सम करके यहाँ रिप्लेस करना है और फिर हमें मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट निकालना है इसका। तो बस 3 सीरीज का सम करके फिर आप देखने लग जाएगा आपको, और ये सम क्या है, तो इनफाइनाइट जीपी x इक्वल टू 9 की पावर में सम कर दिया, 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27। सो 9 की पावर में आ गया 1/3 फर्स्ट टर्म ओवर 1 माइनस 1/3, कॉमन रेशियो 1/3 है, सो इट इज 9 टू द पावर हाफ हो रहा है, 3 आ गया। सेम वे y निकाल लिया हमने 4, यहाँ 1/3 माइनस 1/9 प्लस ऑर्डिनेट प्लस माइनस साइन है, so 4 to the power 1/3 over 1 minus 1 plus 1/3 because common ratio is negative, प्लस आ गया, so 4 to the power 1/4 √2 हो गया। एंड देन z निकालना है, तो आप देखो z सिग्मा लेना है 1 प्लस आयोटा टू द पावर माइनस आर, ये भी इनफाइनाइट जीपी अगर देखें ये भी तो बोल गया 1/1 प्लस आयोटा प्लस 1/1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इनफाइनाइट जीपी with first term 1/1 plus iota and common ratio is also 1/1 plus iota, ये इनफाइनाइट जीपी का सम। तो एलसीएम लेके आ गया 1 ओवर आयोटा आ गया, ये माइनस आयोटा है, तो रिप्लेस करेंगे तो W हो गया यहाँ पे एक्सेस एक्स क्या आया था, x3 आया था, 3 माइनस √2 आयोटा, ये W। उसका आर्ग्यूमेंट निकाल ही लोगे आप, उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो माइनस अल्फा आर्ग्यूमेंट पता है आपने कैसे निकालना होता है, अल्फा इज tan इनवर्स √2/3 अल्फा है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा बिकॉज ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया माइनस tan इनवर्स माइनस अल्फा। सो दिस इज अगेन वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बायनोमियल। क्या आपने अगर ध्यान से देखें पैटर्न, तो ये टिपिकल नहीं है, 2 है 2 स्क्वायर जो बायनोमियल, देखो ऑर्डिनेट इस एक्सपेंशन को लूँ मैं, अगर ऑर्डिनेट सुपरस्क्रिप्ट 10 है तो 10 लिया मैंने, ऑल्टरनेट टर्म्स हैं 10c0 माइनस 10c1 x प्लस 10c2 x स्क्वायर 10c3 x क्यूब, जो टिपिकल बायनोमियल सीरीज है। यहाँ भी ये भी तो पैटर्न ऐसा ही है, बस यहाँ 10c3 के साथ 2 क्यूब आना चाहिए था, 10 x क्यूब मतलब x को 2 डाल देंगे, 2 आ रहा है, तो इसमें हमें यही तो करना है, बस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, या यहाँ से इसकी सीरीज में देखो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार हाफ लेना पड़ेगा, हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर टर्म, तो ये बन जाएगा 10c0 माइनस 10c1 इंटू 2 माइनस 10c2 2 स्क्वायर प्लस 10c3 2 क्यूब। ये सम तो पता है, ये सम क्या है, इसी सीरीज के अंदर x को 2 डालना है, x को 2 डाल दो सीरीज के अंदर, 1 माइनस 2 टू द पावर 10, आंसर इज 1 आ गया आंसर, तो ये पता है 1 है आंसर, पूरा हाफ आ गया, बिकॉज ये आंसर 1 हो गया, यहाँ से पता चल रहा है, इसमें x को 1 रिप्लेस करके, x को 2 रिप्लेस करके, तो आंसर ओवरऑल आंसर हाफ हो गया। के बाद देख लेना, मैंने आइडिया आपको दे दिया कि बायनोमियल सीरीज के सम है, सिर्फ जस्ट आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है टर्म को, बायनोमियल सीरीज का सम बन गया, इस बायनोमियल सीरीज का फिर वी हैव टू रिप्लेस x इक्वल टू 2। So this is a question came in IIT advanced exam before, and this is difficult question from exam point of view, it's difficult question। क्या इस क्वेश्चन में ये कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 9 निकालना है इस एक्सपेंशन के अंदर, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, देखो ऐसे 1 प्लस एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 9 निकालना है। आप सोच के देख लेना, और तरीका निकलता नहीं है, सबको मल्टीप्लाई करके 9 निकालना पड़ेगा, विच इज वेरी टीडियस, राइट, विच इज वेरी टीडियस टू फाइंड एक्स टू द पावर 9 इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस। तो कैसे, मतलब थोड़ा तसल्ली चाहिए, एग्जाम में तो बहुत डिफिकल्ट है ऐसे करना तसल्ली से। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो बन रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, फर्स्ट टू टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, फिर है 1 प्लस एक्स क्यूब, फिर आगे चलता जा रहा है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारी टर्म्स तो आएंगी आएंगी, राइट। और जैसे लिख लेता हूँ, जब इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, लेकिन फिर मुझे एक्स क्यूब को सबसे मल्टीप्लाई करना है, एक्स क्यूब को सबसे मल्टीप्लाई करूंगा तो इन सब में एक कोफिशिएंट चेंज हो रहा है एक्स क्यूब का सिर्फ, कैसे, बाकी सब नेक्स्ट टर्म्स आएंगी, क्योंकि जब एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फिर एक्स क्यूब आ गया, बाकी फिर 4 5 6 आएगा, तो ये कोफिशिएंट डबल हो गया 2x क्यूब, बाकी 4 5 एक्स टू द पावर 4 एक्स टू द पावर 5 एक्स टू द पावर 6 आया। और फिर नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 से, इसमें ये सारे कोफिशिएंट तो एज इट इज रिपीट हो जाएंगे। जब 4 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ से 1 से, तो एक्स टू द पावर 4 कोफिशिएंट बढ़ेगा, 5 का बढ़ेगा और 6 का बढ़ेगा, ये सारे तीनों कोफिशिएंट बढ़ेंगे 4 5 6 का। तो मैंने लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x क्यूब, 4 का कोफिशिएंट बढ़ के 2x टू द पावर 4 हो जाएगा, फिर नई टर्म आ गया x टू द पावर 4 की, जब 1 को मल्टीप्लाई किया x टू द पावर 4 से, एक तो पहले से थी एक और आ गई, जैसे 5 की एक और टर्म आ जाएगी और 6 की एक और आएगी, और फिर जो बाकी टर्म तो आगे बढ़ती रहेंगी, 7 टू फॉर एग्जाम्पल 2 टू द पावर 7, 2 टू द पावर 8, सॉरी 2 into x to the power 7, x to the power 8, x to the power 9, ये टर्म्स आएंगे। 9 मेरा आ गया, देखो 9 चाहिए था मैं, 9 आना, अब आना शुरू हुआ 9, और 10 भी आएगा, सॉरी 10 भी आएगा, 10 तो मैं चाहिए नहीं, क्या करेंगे 9 से, 10 की तो जरूरत नहीं लिखने की है। फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब हम पैटर्न देखना शुरू कर लेते हैं, इन सब 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा, फिर जब 5 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, हमें इससे तो एक यहाँ से 9 मिला मुझे, देखो 2x टू द पावर 9 यहाँ भी आएगा, एक x टू द पावर 9 तो है जब 1 से मल्टीप्लाई किया है, 2x टू द पावर 9 यहाँ से भी आ जाएगा, तो 3x टू द पावर 9 तो आ चुका है मेरा, बाकी सारी टर्म है यहाँ पे, राइट। और मल्टीप्लाई करा मैंने, फिर 1 प्लस, बाकी और टर्म बढ़ती चली जाएंगी 10 11 12 13, मतलब नहीं है। फिर 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 7 से भी करेंगे और 8 से भी करना है और 9 से भी, यहाँ तक चाहिए। अब देखो, अब हमें बार बार पैटर्न मिल जाएगा हमें। अब 6 में 1 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म तो आएगी 3x टू द पावर 9, 6 को जब x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तब आएगी, x क्यूब का कोफिशिएंट 2 है तो ये 5x टू द पावर 9 बन जाएगा इसके बाद, राइट। बाकी सबसे मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है, जब x टू द पावर 6 x क्यूब से मिलेगा तब जाके x टू द पावर 9 मिल रहा है, तो 2 से और बढ़ गया कोफिशिएंट 9 का, 5 हो गया। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करना है तो मेरा 1 इंटू एक्स, 1 से जब मल्टीप्लाई होगा 5 तो आ ही गया, तो 7 एक्स स्क्वायर टर्म से मल्टीप्लाई होगी, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 ही है, तो एक और एक्स टू द पावर 9 बढ़ गया मेरा, ये आ जाएगा, फिर ये बन गया 6 एक्स टू द पावर 9 बन गया जब इससे मल्टीप्लाई किया। सेम में जब 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म आएगी, और एक्स टू द पावर 8 से 9 कैसे बनेगा, जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारी पावर चेंज नहीं हो रही है, ये सारी सेम ही रहेंगी, हायर पावर्स आती जा रही है, तो ये एक्स टू द पावर 9 एक बार और आ गया, प्लस एक्स टू द पावर 9 की टर्म आई तो हो गया 7 एक्स टू द पावर 9। फिर लास्ट में 1 प्लस टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म आएगी, और 9 से जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक और एक्स टू द पावर 9, तो बन जाएगा 8 इंटू एक्स टू द पावर 9, तो कोफिशिएंट 8 हो गया एक्स टू द पावर 9 का। तो पहले शुरू में मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा हमें, जैसे एक्स टू द पावर 9 बनना शुरू हो गया मेरा, उसके बाद से मैंने आइडिया लेना शुरू हुआ एक्स टू द पावर 9 कैसे बन सकता है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके जो पुराना एक्स टू द पावर 9 का कोफिशिएंट था वो मेंटेन रहेगा, लेकिन जो एक्स टू द पावर 6 से जब मल्टीप्लाई करेगा एक्स क्यूब की टर्म, तो वहां से एक्स टू द पावर 9 आ रहा है। इसमें एक्स टू द पावर 7 को जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 9 आ रहा है, फिर 8 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू द पावर 9 आ रहा है, 9 को एक्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स टू द पावर 9, सारे नए कोफिशिएंट जनरेट हो रहे हैं एक्स टू द पावर 9 के। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। So this is from the point 15, 3 normals are drawn. Very typical question. इस point से 3 normals draw किए पे, इस पे the centroid of the triangle formed by the 3 feet. तो जो parabola y square equal to 4x है, a equal to 1 है, point कहीं भी रफ लिया हमने, यहाँ से 3 normal जो बनाए हमने ऐसे, यहाँ से जो भी बताएगा ऐसे, इनसे जो ट्राइंगल बन रहा है वो उसका सेंट्रोइड निकालना है। तो ये T1, T2, T3 निकालने हैं हमने, तो पैरामीटर्स निकालने हैं तो पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अब देखो इसमें ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, y प्लस एक्स नॉर्मल की इक्वेशन,
280 ये 1 है प्लस 80 क्यूब ये इज 1 ये, फिर पॉइंट रिप्लेस कर दिया इसमें तो टी क्यूब प्लस 2 माइनस एक्स करना है, 2 माइनस एक्स क्या है, पॉइंट क्या है 15, 2 माइनस 15 इंटू टी माइनस वाई माइनस 12 इक्वल टू 0। सो टी क्यूब माइनस 13 टी माइनस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व करके टी इक्वल टू माइनस में सेटिस्फाई कर रहा है तो टी प्लस 1 से डिवाइड करना है, ये बच जाएगा टी स्क्वायर या माइनस 12 ये माइनस टी, यार अब मैच कर रहा है इक्वल टू 0। इसको फर्दर फैक्टराइज कर दिया हमने, टी स्क्वायर ये 403 है, टी स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी प्लस 3 माइनस 12 या मैच कर रहा है। तो टी की वैल्यूज आ गई -1 4 -3। अब सेंट्रोइड तो ये होगा, इसमें सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ये 1 है, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t3 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 और 2 t1 प्लस t2 प्लस t3 डिवाइड बाय 3। यहाँ सेंट्रोइड निकल जाएगा, स्क्वायर्स का सम करना है तो 1 प्लस 16 प्लस 9 डिवाइड बाय 3, इन सब का सम करना है, तीनों का सम तो 0 बन रहा है। सो 26 by 3, 0 centroid, right? So this is a question: if a tangent to this ellipse at point 5a is normal to this circle. Easy question है, टेंजेंट जो इस पे है ये x square by 16 plus y square by 4 equals to 1। टेंजेंट की क्वेश्चन x by a cos phi plus y by b 2 sin phi equals to 1। अभी नॉर्मल है इसका तो नॉर्मल सेंटर से पास करेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या 4,2 रिप्लेस कर दिया, सेंटर को 4,2 को 4 से 4 डिवाइड cos phi 2 से 2 कैंसिल sin phi इक्वल्स टू 1। अब ये तो दिख रहा है दोनों का सम 1 है तो क्या होगा, मतलब बाई इंस्पिरेशन देख सकते हैं या सॉल्व करना है तो फिर सॉल्व पूरा करना पड़ेगा। बाई इंस्पिरेशन देख सकते हैं phi इक्वल टू π/2 होगा, sin π/2 1 ये 0 बाई इंस्पिरेशन आ रहा है, अदरवाइज तो √2 से डिवाइड करके दोनों साइड को √2 से डिवाइड करके इसको लिख लिया आपने साइन ये cos whatever whichever you prefer, cos phi minus 5 minus π/4 equals to cos π/4। तो इसे सॉल्व करके 5 minus π/4 equals to 2n pi plus minus π/4, तो ऐसे निकालना पड़ेगा क्योंकि बाई इंस्पिरेशन नहीं आ रहा है। राइट, बाकी और भी आंसर आ रहे हैं, इसमें मैच नहीं कर रहे चॉइस से ना। देखो अगर जैसे यहाँ तो कई सारे बेटर ऐसे कर लो, यहाँ पे अगर ये था मेरा तो मतलब जब ये 0 है तो 1 है, ये 1 लिया तो ये 0 ले लिया, तो ये भी हो सकता है इसमें कि 2 पाई भी सेटिस्फाई कर रहा है, 2 पाई भी, तो यहाँ से आंसर आ रहा था ना 2 पाई, तो मैंने देखा 2 पाई भी सेटिस्फाई कर, लेकिन वो आंसर सारे एक्यूट एंगल है इसलिए π/2 है। ये प्रॉपर सॉल्व कर लिया है कि बात है, बट क्वेश्चन है नहीं कुछ, टेंजेंट की क्वेश्चन लिख के वो नॉर्मल बना दिया तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, स्पीड चाहिए सॉल्व करने के लिए। This is the product of the slopes of the common tangent between these two। टिपिकल क्वेश्चन है, दो सर्कल और इलिप्स का कॉमन टेंजेंट निकालना है, तो या तो सर्कल की टेंजेंट क्वेश्चन लिख के इलिप्स के साथ सॉल्व कर सकते हैं, राइट, या कंपेयर कर लेंगे कैसे भी, कि अगर से मैंने यहाँ पे दोनों करके देख लेते हैं। ये इस पे जनरल टेंजेंट लिखा मैंने, स्लोप m का y इक्वल्स टू mx प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर, a स्क्वायर इज 2 a स्क्वायर इज 4 इसके m प्लस b स्क्वायर, ये टेंजेंट की क्वेश्चन है, इस सर्कल को टच कर रही है। दो तरीके हैं, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दें, ऑरिजिन से डिस्टेंस लिया, इसका ऑरिजिन से डिस्टेंस है रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 1 ओवर रूट ऑफ 1 प्लस m के ऑरिजिन से डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस के इक्वल कर दिया, स्क्वायर करके आ जाता है m स्क्वायर 2 आ जाता है, m इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 का प्रोडक्ट -2 हो गया। या फिर आपने कहा कि कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर नहीं लगा पाते हम, सर्कल नहीं कोई और कर्व है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं कि x को रिप्लेस करके ना y को रिप्लेस करके x स्क्वायर प्लस इसको रिप्लेस कर दिया mx प्लस रूट ऑफ 4m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अब टेंजेंट होना चाहिए तो उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दिया क्वाड्रेटिक का ये कर लेते हैं, तो d इक्वल टू 0। या फिर उल्टा टेंजेंट सर्कल पे टेंजेंट लेके सर्कल पे टेंजेंट ले लिया, y इक्वल्स टू mx प्लस
a into root of 1 plus m square. A is root 3 root of 1 plus m square, tangent drawn to this circle. और इसको इलिप्स पर टेंजेंट होना चाहिए, वो सॉल्व करने वाला तरीका भी वैलिड होगा और ये भी वैलिड होगा. सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए. लाइन इज टेंजेंट टू इलिप्स, दिस इज द कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी टेंजेंट टू इलिप्स. इसका जो एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट है उसका स्क्वायर, ये तो ए और भी तो पता ही है हमें, ये 4 है और 4m स्क्वायर प्लस 1 ये. तो स्लोप निकालना है यहाँ से लाइन से, राइट. स्लोप तो एम ही है 4m स्क्वायर प्लस 1 और सी लेना है इसमें. सी क्या होगा इसमें, ये रूट 3 रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर ये लेना है. तो ये सेम कंडीशन आगे जो यहाँ कर रहे थे, ये सी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर इसका सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये ऐसे कर लिया आपने, मैं किसी को भी एक कर को लेके दूसरे टाइप पे कर लिया. Now this is a question which I think if you have not done this before, you cannot do this question. There's a typical method of doing this question. See, in a decimal system of numeration, the number of 6-digit numbers बनाए, number of कितने 6-digit number बन सकते हैं such that, तो कोई भी digit ले सकते हो 0 to 9. Sum of the digits is divisible of 5. Sum of the digits 5 से divisible होना चाहिए. तो इसमें बहुत ऐसे केसेस बनेंगे, तो हम यही करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स की नंबर्स डिविजिबल 5 नहीं चाहिए, सम ऑफ द डिजिट डिविजिबल 5 होना चाहिए. तो कॉन्सेप्ट लगाते हैं. 5 का क्वेश्चन भी है, 2 का भी आता है, डिविजिबिलिटी में 9 का भी आता है, ऐसे हर तरह से क्वेश्चन बन जाता है. तो हम पहले भरना शुरू कर देते हैं. पहले देखो कैसे करते हैं इसको हम 9 वेज में फिल कर सकते हैं, बिकॉज 0 नहीं आ सकता. रिपीटेशन इज अलाउड, इसमें लिखा नहीं होना चाहिए था इसके अंदर. इसको 10 वेज में, इसमें रिपीटेशन अलाउड होना जरूरी होता है, नहीं तो नहीं बन सकता क्वेश्चन है. इसको 10 वेज में, इसको 10 वेज में. अब हम लास्ट पे कंडीशन लगा देते हैं. इनको जैसे मर्जी भर दिया हमने ऑल पॉसिबल वेज में. अब लास्ट में कहते हैं कि अब देखो इन सब का सम ऑफ द डिजिट्स की बात हो रही है. डिजिट्स यूज हुई है यहाँ पे, उनको सम क्या हो सकता है, उनका सम 5 का मल्टीपल हो सकता है, 5 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा हो सकता है, 5 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा हो सकते हैं, 5 के मल्टीपल से 4 ज़्यादा हो सकता है. अगर 5 का मल्टीपल है ऑलरेडी, तो मुझे मेक श्योर करना इन सब का डिजिट्स का मल्टीपल 5, इन सब डिजिट्स का सम 5 का मल्टीपल होना चाहिए. तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन बनती हैं, 0 आ सकता है, 5 आ सकता है, क्योंकि वी कैन फिल दिस इन 2 वेज. सो दैट सम शुड बी डिविजिबल बाय 5. ये तो 5 का डिविजिबल है सम इन 5 डिजिट्स का, तो 6 डिजिट भी 0 5 होनी चाहिए. ऐसे अगर 5 के प्लस 1 है, तो अब देखो मेरा मतलब यहाँ पे क्या आ सकता है कि सम ऑफ द 5 डिजिट बन जाना चाहिए, सम ऑफ डिजिट 5 डिजिट 5 का मल्टीपल बन जाना चाहिए. जैसे एग्जांपल ले लो, ये 5 के प्लस 1 मतलब ये 0 हो सकता है, यहाँ पे एक ज़्यादा, ये 6 हो सकता है, यहाँ पे इन दो में से कुछ होगा. जो सम ऑफ द डिजिट्स है 0 हो सकता है. 6 में एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 के मल्टीपल से एक ज़्यादा, 11 हो सकता है, राइट, 16 हो सकता है, 21 हो सकता है, ये सब में कुछ भी मतलब 5 के मल्टीपल से एक ज़्यादा. तो मेरे पास ऑप्शन ही बचती हैं, या तो मैं 4 लूँगा यहाँ पे, या फिर मैं लूँगा 9, सो दैट की सम 5 से डिविजिबल हो. 4 के 2 ऑप्शन बचती है, तो हर एक में 2 ऑप्शन बच जाएंगे. ये लोगे आप, तो यहाँ पे 3 और 8 ये ऑप्शन होगा. यहाँ पे ऐसे ही 5 के मल्टीपल 3 ज़्यादा है, तो ये 2 और 7 है, और यहाँ 1 या 6 ऐसे है. तो इसको 2 वेज में फिल कर सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पे आपने क्या फिल किया. सो दैट सम ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 5. इसको 2 वेज में फिल कर सकते हैं. तो और फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लग गया, बिकॉज दिस इज 2 इज इंडिपेंडेंट ऑफ कि आपने कैसे जॉब्स को किया. 9 into 10 to the power 4 into 2, so it is 18 into 10 to the power 4. ये आंसर आ गया. तो ये तभी कर सकते हैं आपने क्वेश्चन किया पहले. तो इस तरह से कि पहले जितने भी डिजिट्स हैं, जितने सबको पहले जिससे मर्जी भर दिया. अब लास्ट में कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर डिपेंडिंग अपॉन जो पहले 5 डिजिट्स हैं उनका सम क्या है. उनका सम अगर मल्टीपल ऑफ 5 है तो 2 ऑप्शन है, मल्टीपल ऑफ 5 प्लस 1 है तब भी 2 ऑप्शन है, तब भी 2, हर एक में 2 ऑप्शन है. 2 वेज फिल कर सकते हैं. फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग लग गया. So quickly I'll go through the question I missed out because of the voice problem in the beginning. So I was told from question number 63. So question number 63 and 64, 65. I don't know which 6. Maybe till 68, I think. So see 63 question. I can just give you idea. I was telling you that you have to I'm sure you know this, but एग्जाम में दिमाग में आया नहीं आया कि इसके रूट्स हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर. इसके ये
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन देखेंगे या वो फर्क नहीं पड़ता है ये है या जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस वन है, ये देखना कि इसके जो रूट्स हैं वो जेड इक्वल्स टू ओमेगा और जेड इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर है, ये है, या फिर एक्स इक्वल टू ओमेगा एक्स। सेम वे अगर बीच में माइनस साइन आ जाता है तो उसके रूट से माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ये क्वेश्चन होते हैं तो फिर ये क्वेश्चन अगर उनके दिमाग में आ गया तो क्वेश्चन था ही नहीं कुछ, ये था ओमेगा प्लस माइनस माइनस ओमेगा माइनस वन बाय ओमेगा, ये ऐसे है का स्क्वायर, फिर यह है ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाय ओमेगा स्क्वायर, ये है फिर ओमेगा टू द पावर 4 प्लस वन बाय ओमेगा टू। ये सारे सिंप्लीफाई होकर सेम टर्म बन जाते हैं कि इसको एलसीएम लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर भी है, मतलब माइनस वन का स्क्वायर है, ऐसे समझो। ऐसे ये इसको भी ऐसे लिखोगे तो क्या माइनस बाहर चला गया, ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो सारी टर्म वन ही है, देखा जाए तो ये सारी टर्म वन ही है, तो 24 आंसर हो गया ये तो। Now this is the question, this is that there's AB is a variable line sliding between the coordinate axis. Variable line sliding between the coordinate axis. This point is A, this point is P. There's a point P on AB dividing point P on AB such that this length is A and this length is B. Length है, ratio नहीं length है। Now we have to find locus of point P निकालना है, ये A और ये B है। तो इसके दो तरीके मैं बता रहा था, एक तो आप इस एंगल को थीटा ले लें, तो ये इसके ये ए प्लस बी कॉस थीटा लेंथ हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए ए प्लस बी कॉस थीटा कॉमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा ए प्लस बी साइन थीटा। फिर आपने सेक्शन फॉर्मूला लगा के दो इक्वेशन बन जाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला लगाया आपने कि ए इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 0 है वो, तो बी इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस b into a plus b cos theta divide by a plus b equals to x1। सेम में y कोऑर्डिनेट आएगा b into y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 0, a into x y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस a into a plus b sin theta divide by a plus sum of the ratios equals to y1। तो आपने बस इस यहाँ से cos theta लिखा, यहाँ से sin theta लिखा, a plus b तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ से cos theta लिखा और यहाँ से sin theta लिखा, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो ये लोकस आ गया। या फिर आपको अगर थीटा के फॉर्म में नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं, पहले आपने किया भी होगा क्वेश्चन ये कि आपने इसको मानना पड़ता है, इसमें वेरिएबल मानना पड़ेगा, यहाँ थीटा मानना पड़ा है, यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट को एम ले लिया, वाई इंटरसेप्ट को एन ले लिया, और फिर आपने यहाँ से फिर सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया, ये है ये भी है, राइट। सेम अभी भी सेम करना है, x1 इक्वल्स टू नीचे a इंटू एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द 0 b इंटू एम डिवाइड बाय रेशियो a प्लस बी, ये एक इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन बनेगी y1 इक्वल्स टू a n डिवाइड बाई ए प्लस बी। थर्ड इक्वेशन में चाहिए बिकॉज एम और एन दो वेरिएबल है, एम और एन। थर्ड इक्वेशन आएगी पाइथागोरस से, ये लेंथ एम है, ये लेंथ एन है, और ये ए प्लस बी है। सो ये इक्वेशन आ गई एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब ये एम और एन को रिप्लेस कर दिया, यहाँ से एम को यहाँ रिप्लेस कर दिया, एन को यहाँ रिप्लेस कर, लोकस आ जाएगा। To whichever way you are comfortable with theta without theta. And this question was, तो इसमें लोकस ऑफ मिड पॉइंट निकालना है ऑफ दिस वेरिएबल 9। इस लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द इंटरसेप्टेड लेंथ, ये इंटरसेप्टेड लेंथ बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट को मान लिया, मैक्स एंड वाई वन इसका लोकस निकालना है, तो ये हो गया 2x, ये रिजल्ट है सीधा 2x दो स्टेप में डिराइव भी हो जाएगा, लेकिन याद ही होना चाहिए अगर मिड पॉइंट x1 y1 है तो ये x इंटरसेप्ट 2x y इंटरसेप्ट 2y1 है। यहाँ आने के बाद x इंटरसेप्ट तो पता है ना इनका क्या है, सो 2x1 इक्वल्स टू p बाय cos अल्फा and 2y1 equals to p by sin alpha. So what I was telling you, अल्फा को एलिमिनेट कर लिया, यहाँ से cos अल्फा आ गया, इसको नीचे को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ sin अल्फा आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से स्क्वायर एंड ऐड, अल्फा एलिमिनेटेड। तो I was telling you, इस सारे को प्रैक्टिस करना। I don't know whether when I said this there was a audio problem or there was no audio problem. That you need to practice these at least in the remaining time, whatever time you have, like 25 days हैं. So you 40 days हैं till the final exam. So at least 25 papers तो आपने टाइम आउट करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे 3-3 घंटे। I know maybe 20 पेपर ही कर लो, but it's important because if you do this, you will have definitely you build your stamina, your calculation your speed will improve, your calculations would improve, and your confidence will also improve. मतलब 4 एडवांटेज होंगे। एक तो आपका कैलकुलेशन बेटर हो जाएंगे, आप इतने सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे आप साथ में, मतलब कैलकुलेशन एंड कंसंट्रेशन, बिकॉज कंसंट्रेशन कैलकुलेशन विल गो अप, स्पीड आपकी इंप्रूव होगी।
आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा और जनरल स्टेमिना, टायर्डनेस हो जाती है इतना इतना बैठ के लिख के सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो जो बॉडी फिटीग हो जाएगा, मेंटल फिटीग होगा, वो उसी के लिए यू प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। तो टाइम आउट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बिफोर एग्जाम। सो दिस वाज अ क्वेश्चन विच आई वाज टेलिंग इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में सर्कल निकालनी है विच इज कंसेंट्रिक विद दिस सर्कल। तो सेंटर तो सेम हो गया 3, -4, सेंटर के कॉर्नर 3, -6, 3, -6 हो गए, राइट। एंड एरिया डबल है इसका, तो एरिया डबल है मतलब पाई आर स्क्वायर, आर रेडियस मान लेते हैं सर्कल के चाहिए, पाई आर स्क्वायर जो इसका एरिया वो डबल द एरिया ऑफ द गिवन सर्कल, अब डबल द एरिया इसका इसका आपने रेडियस निकाल लिया। अब ये आपने मतलब सॉल्व करने में 30 सेकंड में आंसर आना चाहिए इसका। नहीं आंसर आ रहा है तो मतलब फिर तो बहुत जरूरी है आपको प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस की। So this was a question. So line segment. Just a minute. Let me see till I don't remember till what question. Like when I started, when the voice came, like I was discussing which question that time. So this is a line segment AB AM moves in XYZ plane so that AM is parallel to x-axis. Right, AM is parallel to x-axis. This is how this line segment is. A is on the circle and ऐसे AM is parallel to x-axis and A moves along the circle. तो इस तरह से parallel to x-axis लाइन ऐसे मूव कर रही है सर्कल के ऊपर, कहीं भी जा सकती है ऐसे ऐसे, फिर उल्टी हो जाएगी, ये पॉइंट A हो जाएगा, M इधर आ गया। You have to find locus of M. The question simple है, इंटरेस्टिंग है। तो M का जो लोकस निकालने के लिए मैं M को कोऑर्डिनेट्स को अज्यूम कर लिया, देखो x1 y1। तो आई वाज टेलिंग यू देयर आर टू वेज कि आपने ये x1 y1 लिया है, ये लेंथ A है तो ये कोऑर्डिनेट्स लिख लिया मैं ऐसे। A पीछे भी हो सकता है, ये आगे भी हो सकता है। देखो इस केस में ये आगे है तो ए का जो एक्स कोऑर्डिनेट है ज़्यादा x1 प्लस ए हो जाएगा, इस केस में y1 सेम रहेगा, x1 प्लस ए, ये कम हो सकता है। तो जब एक ही कोऑर्डिनेट्स आ गए हमने प्लस माइनस लिख के सर्कल में रिप्लेस कर दिया क्योंकि पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहा है, लोकस आ गया, नो वेरिएबल नो एलिमिनेशन। या फिर आप सर्कल की एक ही कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लो पैरामीट्रिक फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन से, cos थीटा कमा sin थीटा। अब एक ही कोऑर्डिनेट्स अज्यूम कर लिए तो m के कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ गए कि x1 m का कोऑर्डिनेट x1 है और x1 क्या होगा, a cos थीटा प्लस a प्लस माइनस a, और y1 इक्वल टू a sin थीटा सेम होगा। ये x y कोऑर्डिनेट ऑफ m1 is सेम, y कोऑर्डिनेट ऑफ m is सेम एज y कोऑर्डिनेट ऑफ a। तो इससे आप एक थीटा को एलिमिनेट कर दो, बात वही है, इसको उधर शिफ्ट करके दो, व्हिचएवर वे यू प्रेफर। कि थीटा को हमने एलिमिनेट कर दिया इस तरह से, वहाँ है कि एक ही कोऑर्डिनेट निकाल के सर्कल में रिप्लेस कर दिया, यहाँ है कि एक ही कोऑर्डिनेट पैरामीट्रिक फॉर्म में ज़ूम कर लिए और हमने फिर यू नो उससे फिर हमने ए ऐड करके m के कोऑर्डिनेट निकाल के x1 y1 के इक्वल कर दिया। तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। Right. So this is a question, I was telling you that question is the locus of the points from where the length of the tangents to the two circles are in the ratio 2:3. Length of the tangents are in the ratio 2:3. तो ये पहले तो मैं बस you should know that कि रेडिकल एक्सिस की डेफिनेशन होती है, इट्स अ लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, ऐसे पॉइंट का लोकस है रेडिकल एक्सिस जहाँ से वी कैन ड्रॉ टेंजेंट्स ऑफ इक्वल लेंथ टू टू सर्कल्स। अगर ये पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट B है, टेंजेंट ड्रॉ की है PB, सो PA इक्वल टू PB इज अगर मैं कहता हूँ P इक्वल टू PB है जो उससे लोकस आएगा विच इज नोन एज रेडिकल एक्सिस, इट विल बी अ लाइन एंड नोन एज रेडिकल एक्सिस। लाइन क्यों आती है, PA क्या आता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1, सर्कल की क्वेश्चन S1 है तो सर्कल की क्वेश्चन में रिप्लेस कर दो x की जगह ये पॉइंट x1 y1 लिया, x की जगह x1 y की जगह y1, रूट ऑफ S2। S2 का मतलब स्पेसिफिक है, सर्कल S होता है लेकिन उसमें S2 रिप्लेस करने का मतलब है स्पेसिफिक कर दिया, उसमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रिप्लेस कर दिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाती है, दोनों को इक्वेट कर दिया, स्क्वायर करके आगे S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। ये तो ये एक लाइन की क्वेश्चन बन जाएगी नोन एज रेडिकल एक्सिस। इस केस में लाइन नहीं सर्कल आएगा, उसी का रेडियस उसी का सेंटर निकालना है। इस बार हमें ये करना है कि PA बाय PB की जो रेशियो है वो 2:3 है। तो बस कुछ नहीं, PA में पता ही है रूट ऑफ S1 है, ये रूट ऑफ S2 है,
इक्वल टू 2/3 है, स्क्वायर करके तो आ गया 3 9s1 इक्वल्स टू 4s2। तो सर्कल की क्वेश्चन रिप्लेस करनी है, रिप्लेस x बाय x, वही मत करो, बाद में लोकस ही निकालना है। तो या सर्कल फर्स्ट सर्कल की क्वेश्चन रिप्लेस कर दो या सेकंड सर्कल की क्वेश्चन रिप्लेस कर दो, राइट। तो सर्कल की क्वेश्चन बन रही है, तो उसका सेंटर निकालना है। So this was a question which I was, this might be tricky to solve in exam because not the question is difficult, but you can go in the wrong direction. तो इसमें अब ये कि ये तो समझ आ रहा है कि करना क्या है, इसमें सॉल्व फॉर एक्स करना है, ऐसे लाइक एन इक्वेशन सॉल्व करनी है। और अगर हम अब आप ये देखो कि अगर आपने एक बार पहले तो स्टेप स्टार्टिंग में ये करने लग जाओ, 3 to the power x इक्वल टू लॉग चला गया, दिस ओवर दिस रूट ऑफ, और ये चीज़ पहले आपने करी, रिपीटेटिव पैटर्न बन रहा है इसमें, देखो आप, और इन्फिनिटी तक पैटर्न बन रहा है। तो ये हम कैसे करते हैं, हमने कई टॉपिक में डिस्कस किया पहले, ऐसे लिमिट्स के क्वेश्चन में भी आता है ये, डेरिवेटिव के क्वेश्चंस में आता है ये, ऐसे ऐसे करके। तो अब ये कि इसको, अब ये इंपॉर्टेंट था इसमें कि ऊपर वाले को अलग लेना है, नीचे वाले को अलग लेना है, एम और एन मान लिया, एम को अलग से सॉल्व करना है। एम क्या है, रूट ऑफ 30 प्लस, अब देखो पैटर्न रिपीट हो गया, उसको एम मान लिया दोबारा मैंने, यही करते हैं, इसको भी मैं एम मान सकता हूँ, राइट। ये पूरा एम है तो ये भी एम ही है, क्योंकि पैटर्न रिपीट ही हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम से एक टर्म कम होगी, फर्क नहीं पड़ता कोई। ऐसे ही ये नीचे जो पैटर्न है 2 वाला, एन इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस, फिर दोबारा रूट ऑफ 2 शुरू हो गया, तो उसको फिर दोबारा हमने एन ले लिया, इसको भी जो एन ये, तो यहाँ से एम सॉल्व करके निकालेंगे, यहाँ से एन सॉल्व करके यहाँ रिप्लेस कर दिया आपने। तो बेसिकली इसका एंटी लॉग लेने की जरूरत नहीं थी, सीधा हम ऐसे ही लिख लेते बेटर था, एक्स ऑफ लॉग ऑन बेस 3 एम बाय एन। तो बेसिकली एम और एन अलग से सॉल्व करके रिप्लेस करना है, तब एक्स आएगा। So this is a question based on calculus, this based on functions है। तो इसमें ये देखना है, इसे अब सिंप्लीफाई करना है इसको, ये द वैल्यू ऑफ सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ दिस, तो मॉड हटाना है, अपना भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, और मॉड हटाए बगैर सिंप्लीफाई होगा भी नहीं। तो मॉड हटाने के लिए इस रेंज में देखना है कि कॉसेस पॉजिटिव या नेगेटिव है, कॉसेस पॉजिटिव मॉड हटा सकते हैं, नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे, सेम हेयर। तो कॉसेस के ग्राफ से देख लिया हमने, कॉसेस का ग्राफ बनाया, वहां देखा कि जो रेंज है मेरी 3 पाई/4 टू पाई, वो यहाँ कहीं आ रही है, ये पाई/2 है, ये पाई है, तो ये 3 पाई/4 टू पाई। इसमें तो कॉसेस नेगेटिव है, साफ दिख रहा है, ग्राफ इज बिलो एक्स एक्सिस, तो कॉसेस नेगेटिव, मॉड हटा के माइनस साइन लगा दिया। फिर कॉस टू ऐसे ग्राफ बनाया, कॉस टू ऐसे ग्राफ में, ये कॉस टू ऐसे ग्राफ है, पीरियड इसका हाफ हो जाएगा कॉस टू एक्स का, टू, बिकॉज पीरियड इज 2 पाई/m, 2 पाई/2 पाई हो गया पीरियड इसका, कॉस टू एक्स का। तो ये पाई में पूरा ग्राफ आ गया। अब जो 3 पाई/4 टू, वो ये ग्राफ आ रहा है, 3 पाई/4 से 4 पाई तक ये ग्राफ है, पॉजिटिव है कॉस टू एक्स, मॉड हटा दिया विदाउट पुटिंग द नेगेटिव साइन। ये इसको जो मैंने 2 cos² x - 1 रिप्लेस किया है, क्वाड्रेटिक जो बनी, इसको फैक्टराइज करा, तो वही फैक्टर्स आ गए जो डिनोमिनेटर में कैंसिल होकर आंसर बना है। So I also told this few times. I don't know whether you could listen to me or not. That purposely I'm solving this question quickly, going through them quickly. कि concept fundamental हैं, आपको आते ही होंगे mostly concepts. But because if I want you to attempt this paper, maybe like tomorrow, day after tomorrow, after a few days. Otherwise, there's no use of it. और क्लास का भी यही पर्पज है कि आपका ये क्लास के चक्कर में टेम्परामेंट बन जाए, वो कर लो। अदरवाइज इट्स नॉट वी आर लर्निंग मच इन दिस क्लासेस, दैट at least you get a confidence of doing it yourself, just a reminder. Now this is a question which is a concept here जो कि पहले पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो नहीं कर सकते, वो इस तरह वाले क्वेश्चन है, और लेकिन इतना टिपिकल ही करा ही होगा। वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, सॉल्व करनी है इक्वेशन को। तो हमने, ये तो जीरो था यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिनोमीटर को तो गायब कर दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गलत है, इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है तो रैशनल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनी है, तो इक्वेशन में क्वाड्रेटिक वर्ड गलत लिखा हुआ था, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन मेरी ये बन गई। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने देख लिया कि ये जो स्क्वायर रूट में क्वांटिटी है वो 2013 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स शुड बी लेस देन 2013, ये तो है ही पहले कंडीशन। तो आंसर में लास्ट में चेक करेंगे कि आंसर वो सेटिस्फाई कर रहा है जो उससे कम होना चाहिए, अदरवाइज तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, वो नहीं बनेगी बात। तो नाउ
integral value of k for which this has integral roots, right? Integral roots हैं इसके. तो रियल इक्वेशन की बात हो रही है, तभी हमने कंडीशन लगाई यहाँ पे, इंटीग्रल रूट्स की बात हो रही है. अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों, अब एक्स इंटीजर है, गिवन एक इंटीजर रूट्स हैं और के भी इंटीजर है, तो ये बेसिकली डिफरेंस टू इंटीजर इज इंटीजर, अगेन डिफरेंस टू इंटीजर इज इंटीजर, दो इंटीजर मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है. तो आपको ये दो केस बनते हैं कि एक 1 होगा इसमें से और दूसरा -1 होगा, देन ओनली वी कैन गेट -1. एक 1 एक -1, दिस -1 और दिस -1 दिस 1. बस सॉल्व करना है. यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 2011, यहाँ से आती है 2013. इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको सेट कर लेंगे. तो इस जो वैल्यू सेट करी उससे करस्पॉन्डिंग k आ गए, k आ गए यहाँ से x -1 2010. यहाँ से x आता है, यहाँ से k आता है x + 1, k की वैल्यू आती है 2014. तो रिजेक्ट ही कर दिया हमने इसे. So now so this is question number 72, which I was telling you, is a very the kind of thing sometimes which you, when you're panicking in exam, you are anxious in exam, you miss out these things and you're not because able to think straight in exam. So that's why the confidence and temperament, no nervousness, less nervousness, that state is required. Otherwise देखते हैं तो इसे उल्लू बनाने के लिए दिया हुआ. इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये है पाई इंटू mod x plus pi into 2 pi into greatest integer x है. 2 pi into greatest integer x. Now if you see greatest integer x is an integer और ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया, तो ये 2n पाई की तरह ही तो है ये इंटीग्रल. और 2n पाई हमेशा हम कॉस या साइन या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हटा सकते हैं, क्योंकि 2 पाई के बाद तो रिपीट करते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. तो ये तो वैसे ही दिया, कंफ्यूज करने की ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिग्निफिकेंस ही नहीं है. तो एफ एक्स फंक्शन रिड्यूस हो गया कॉस ऑफ पाई mod x. और मैं बाद में कहा था mod x भी हम हटा सकते हैं, इसको सिंपली cos पाई x लिख सकते हैं, बिकॉज mod x को mod x रिप्लेस करने से cos का ग्राफ चेंज ही नहीं होता. इससे जो ग्राफ बनाएंगे वही से ग्राफ होगा, बिकॉज x की जगह mod x रिप्लेस करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये cos का ग्राफ है, cos पाई x है, ये cos पाई x का ग्राफ है, पीरियड 2 है, बस ये फर्क है, पीरियड इसका 2 है. cos पाई x का ग्राफ बना लिया हमने पीरियड 2. अब अगर x की जगह mod x करोगे तो क्या करते हो, लेफ्ट रिजेक्ट लेफ्ट हाफ, राइट टेक रिफ्लेक्शन और राइट हाफ इंटू लेफ्ट हाफ. तो बात वही है, ग्राफ वैसे ही सिमेट्रिकल होता है cos का अबाउट y एक्सिस. तो लेफ्ट हाफ रिजेक्ट करके राइट की रिफ्लेक्शन बनाओगे तो सेम ही ग्राफ आएगा, वो फर्क नहीं है. तो दोनों सेम ही है. तो बेसिकली cos पाई ये ग्राफ है इस बार, एफ एक्स ये है. चॉइस देख लेते हैं, नीदर और नॉट इवन रॉन्ग, इट्स इवन फंक्शन. तो रेंज ऑफ एफ एक्स इज -1 to 1, दिस इज करेक्ट. तो चेक करने की जरूरत नहीं है, देख लेते हैं. एफ एक्स इज नॉन पीरियोडिक फंक्शन इज रॉन्ग, एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन. ये दोनों इक्वल होंगे. एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स टोटली गलत है. मॉड ऑफ एफ एक्स तो ऐसे नीचे ये बन जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स, तो ये बन गया फ्लिप लोअर हाफ इनटू अपर हाफ. ये है, दोनों सेम का है, राइट. ये मॉड ऑफ एफ एक्स है, वेयर एफ एक्स वाज दिस, तो अनइक्वल है. तो ये चॉइस मैच कर रही है. So I think I started from this question, after the. So I've discussed all these questions, and those who texted me on WhatsApp, I really thank you for texting me. Otherwise, I've kept on teaching the way without voice, and you saved me from wasting my time and everyone's time. So maybe I don't know whether maybe if you think I have to keep discussing these questions like the papers. We have more of HPT papers and similar kind of questions, maybe whether it's from HPT or some other place. Does it make sense? Does it adding any value to your preparation? Let me know. You can text me so I can get an idea that I have to take these classes. And next I forgot to create a the recurring session today, so now I'll have to create another session. So it means you have to register again, because if you can, because this because this I plan only for this class, not the next week class, and it will not create me a new session. So I have to create a new webinar. It cannot be a session or a new webinar, means you have to re-register for it. I'll share the link with you. So and again, tentatively we'll have a class on Tuesday and Thursday next week. Thank you so much. Good night.